हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ डिस्कस कर रहे ਸੀਗੇ फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर नंबर 10 बिजनेस स्टडीज ਦਾ। फर्स्ट पार्ट अपना ऑलरेडी हो चुका है, ये सैकेंड पार्ट है। ਅੱਜ ਸੈਕੰਡ ਪਾर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ डिस्कस ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਕੰਡ टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट। दो तरह की फाइनेंशियल मार्केट ਹੁੰਦੀ ਹੈ, मनी मार्केट ਤੇ कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट ਇੱਕ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਹਾਡੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਫਰਸ ਟੂ दैट मार्केट वेयर ट्रांजैक्शंस इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर मेड। ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿੱਥੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਨੇਗੇ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਲਸ ਇਨ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਟ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ? ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਟ ਪਰਫॉर्म्स ट्रेड ऑफ फंक्शन। कैपिटल मार्केट जो है वो ट्रेड ऑफ फंक्शन यानी कि तुसी किस तरह नाल ये समझ सकते हो एक्सचेंज वाला फंक्शन परफॉर्म कर देगी। कैपिटल मार्केट जो है वो अगे दो तरह की होंदी है, प्राइमरी ते सेकेंडरी। तो उत्थे की हुंदा है जदों तुसी एक बारी सिक्योरिटी परचेज कीती हैगी तो उस सिक्योरिटी नू नेक्स्ट टाइम तुसी किसी होर नू भी सेल ऑफ कर सकदे होगे। तो बेसिकली सिंपली अगर आपां कहिए तो सिक्योरिटी दी सप्लाई ते डिमांड, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज ते फाइनेंस दी डिमांड एंड सप्लाई नु एक ही कर देगी मार्केट पूरा कर देगी। तो इस करके ये ट्रेड ऑफ फंक्शन परफॉर्म कर दिया। इट हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। ये चीज आप पहला भी डिस्कस की सीगी जदों आपां फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट डिस्कस कीते सीगे कि फाइनेंशियल मार्केट दे विच की हुंदा जो थोड़ियां सेविंग्स हुंदियां हैं उहनूं आपां किसी प्रोडक्टिव काम लई यूज कर सकदे हांगे। ते ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੀ ਹੈਗਾ कैपिटल फॉर्मेशन है। जिवें आपां गल कीती सीगी कि 50000 रुपया जे मेरी सेविंग्स है ਉਹਨੂੰ मैं किते इन्वेस्ट करदा, किसी कंपनी दे सिक्योरिटीज खरीद ला, शेयर्स डिबेंचर्स कुछ भी खरीद ला, तो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ जो मैनू रिटर्न मिलूगी, जे ये 50000 सेविंग मैं खुद आपदे घरे रखी रखूंगी तो ये सिर्फ 50000 ही रहूगा। जे मैं इस 50000 नू किते इन्वेस्ट कर दूंगी तो हो सकदा इस 50000 तो 55000 भी बन जाए। यानी कि पैसा इन्वेस्ट करन ते मैनू जो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ रिटर्न मिलूगी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? कैपिटल फॉर्मेशन होगी। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ अर्न ਕਰੋਗੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੂਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? कैपिटल फॉर्मेशन होगी। यानी कि पैसे तो पैसा बनी जाऊगा। तो कैपिटल मार्केट ਤੁਹਾਨੂੰ कैपिटल फॉर्मेशन ਵਿੱਚ हेल्प करदी है। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग लिक्विडिटी। लिक्विडिटी भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, कैपिटल मार्केट ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਲ ਆਫ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਹੈਗੇ। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਅਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਪਲਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਘਟਾ ਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। कैपिटल फॉर्मेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। कैपिटल मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਬਣੂਗਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? कैपिटल फॉर्मेशन। ਤੇ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ कैपिटल मार्केट ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ट्रांजैक्शन ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਰਕੀਟ। ਇਟ ਰੈਫਰਸ ਟੂ दैट ਮਾਰਕੀਟ ਇਨ ਵਿਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਸੋਲਡ ਫॉर ਦੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ फॉर कोलैक्टिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। एक ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਸੇਲ ਆਫ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਨਿਊ ਇਸ਼ੂ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ, न्यू इशू मार्केट यानी कि NIM न्यू इशू मार्केट भी नाम दिता जाता है। जे थोड़े तो MCQ दे विच पूछ लैन केड़ी मार्केट नूं आपां न्यू इशू मार्केट भी कहने हैगे तो दैट इज प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट नूं आपां न्यू इशू मार्केट भी कहने। हुण प्राइमरी मार्केट दे की फीचर्स ने रिलेटेड विद न्यू इशू? प्राइमरी मार्केट दे विच केड़ियां सिक्योरिटीज इशू होणगियां? जिहड़ियां फर्स्ट टाइम इशू कीतियां गईयां।
इट हैज नो पर्टिकुलर प्लेस। हुण देखो प्राइमरी मार्केट दी ना कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं हुंदी कि एक जगह नहीं हैगी, जिवें सब्जी मंडी एक जगह है ना कि प्लेस बनी हुई है कि इत्थे सब्जियां मिलदियां, उत्थे सब्जी बेचण वाले लोग ते सब्जी खरीदण वाले लोग जाके मिलदे हैगे। लेकिन जेहड़ी प्राइमरी मार्केट हुंदी है ना ओदी इदां कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं हुंदी। कंपनीज की कर देंगे, इशू कर देंगे, लोग उन्हां नूं खरीद लैंदे आ। आ जेहड़ी ट्रांजैक्शन हो रही हैगी इन्वेस्टर ते कंपनी दे विचकार फर्स्ट टाइम जदों कंपनी ने सिक्योरिटीज इशू कीतीਆਂ गया, इस ट्रांजैक्शन नूं ही नाम दिता गया हैगा प्राइमरी मार्केट दा या फिर न्यू इशू मार्केट दा। किसी पर्टिकुलर जगह ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। इट कम्स बिफोर सेकेंडरी मार्केट, बिल्कुल सही है। प्राइमरी कदों किदे तो पहला आऊगा, सेकेंडरी तो पहला आऊगा। इट हैज वेरियस मेथड्स ऑफ फ्लोटिंग कैपिटल। फ्लोटिंग कैपिटल का मतलब की हुंदा हैगा सिक्योरिटीज नूं जदों आपां इशू कर देंगे तो उन्हों नाम दिता जांदा हैगा फ्लोटिंग ऑफ सिक्योरिटीज। तो हुण वेरियस तरीके नाल तुसीं की कर सकदे होगे प्राइमरी मार्केट दे विच सिक्योरिटीज इशू कर सकदे हो। आह कुछ 4-5 आपां नूं तरीके दिते होए हैगे, इन्हां तरीकों के थ्रू तुसी सिक्योरिटीज जो है वो इशू कर सकते हो। सब तो पहला की हैगा पब्लिक इशू। प्रोस्पेक्टस छपा के जनरल पब्लिक नू इनविटेशन भेज दो कि असी सिक्योरिटीज इशू करन लगे, शेयर्स डिबेंचर्स वगैरह इशू करन लगे, जेड़ा बंदा इंटरेस्टेड है आके साडे तो शेयर्स डिबेंचर्स खरीद ले, ओनू आपां कहंदे हैगे पब्लिक इशू। जदों कंपनी प्रोस्पेक्टस थ्रू की करदी है लोकां नू इनविटेशन भेजदी है। ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल दे विच की हुंदा हैगा कि तुसी एक सेकेंड, नेक्स्ट क्या है ऑफर फॉर सेल। नेक्स्ट की है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल दे विच की है कि तुसी की कर दोगे ब्रोकर्स अंडरराइटर्स नू अपॉइंट कर लेने हो। जदों कंपनीज ब्रोकर्स अंडरराइटर्स दे थ्रू आपदी जो सिक्योरिटीज है वो सेल ऑफ कर दी हैं, उन्होंने आप कहने हैं ऑफर फॉर सेल। नेक्स्ट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। इत्थे पब्लिक नू जनरली ऑफर दिता सीगा। प्राइवेट प्लेसमेंट दे विच की हैगा तुसी जनरली पब्लिक नू ऑफर नहीं दिंदे, जिन्हां लोकां नू तुसी जानदे हो, थोड़े रिलेटिव, थोड़े नोन वंस, फ्रेंड्स वगैरह, उन्हां नू तुसी पर्सनली जाके जे सिक्योरिटी सेल ऑफ कर दोगे तो वो आंदी की प्राइवेट प्लेसमेंट। मतलब कि सीधा जनरल पब्लिक नू नहीं तुसी दे रहे, लोकां नू प्राइवेटली जाके की कह रहे हो कि साडे शेयर्स खरीद दो। प्राइवेट प्लेसमेंट दे विच आ जाऊगा। राइट इशू की हुंदा हैगा, राइट इशू जो थोड़े एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हुंदे हैगे। देखो फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी ने पहला 5 लाख के शेयर्स ऑलरेडी इशू किए हुए थे, ठीक है। ते ये 5 लाख के शेयर्स जिहड़े हैगे वो 20 बंदियां ने खरीदे हुए थे। हुण मेरी कंपनी नूं होर पैसों की लोड़ पैगी तो कंपनी ने डिसाइड किया कि कंपनी नवे शेयर्स होर इशू करूगी। तो फॉर एग्जाम्पल 2 लाख के शेयर्स कंपनी ने होर इशू करने हैं। हुण जिहड़े 2 लाख के शेयर्स इशू करने हैं कंपनी ने, मार्केट दे विच इन्हां शेयर्स नूं इशू करन तो पहला कंपनी नूं यह शेयर्स इन्ना एग्जिस्टिंग आ जिहड़े 20 पहला तो मेरे शेयर होल्डर्स नेगे, इन्ना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स नूं यह 2 लाख के शेयर्स ऑफर करने पैणगे। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कोले राइट हुंदा हैगा, कंपनीज एक्ट 2013 दे अंडर इन्हां नूं राइट दिता गया हैगा कि जदों भी कंपनी नवे शेयर्स इशू करूगी तो उन्हां नवे शेयर्स नूं सब तो पहला इन्ना 20 बंदियां नूं या फिर जिन्ने भी थोड़े एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैगे उन्हां नूं ऑफर किया जाऊगा पब्लिक नूं ऑफर करन तो पहला। जे ये बंदे मना कर देंगे लैन तो देन ही जो शेयर्स है वो पब्लिक नूं इशू किए जाणगे। हुण मोटिव की हुंदा हैगा यह शेयर्स इन्हां बंदियां नूं इशू करन दा, ताकि इन्हां दा जो कंपनी दे विच राइट है वो डिसॉल्व ना हो जाए, इन्हां दा राइट उन्ना ही बनिया रवे। क्लियर होगी गल। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक इशू, IPI या इनू IPO भी कह देंगे है, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक इशू। देखो आजकल सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक होने लग गई हैं, ई बिजनेस शुरू हो गए, ऑनलाइन जदों दा इंटरनेट आया ऑनलाइन हर एक ट्रांजैक्शन होने लग गए। जे कंपनी ऑनलाइन मोड थ्रू इशू कर रही है आपके शेयर्स तो उन्होंने आप कहने हैं इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक इशू। तो वेरियस मैथड्स कंपनी यूज करके आपके जो शेयर्स है वो इशू कर सकती है, पब्लिक इशू कर सकती है, ब्रोकर्स अंडरराइटर्स थ्रू इशू करवा सकती है। देखो अंडरराइटर्स कौन होंगे, अंडरराइटर्स दा कंपनी नाल कॉन्ट्रैक्ट हुंदा हैगा कि कंपनी दे वो कुछ शेयर्स खरीद लेंगे। फॉर एग्जांपल कंपनी दे उन्होंने 5,000 शेयर्स खरीद ले।
ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਹ 5000 ਸ਼ੇਅਰਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੰਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਅੰਡਰਰਾਈਟਰ। ਬ੍ਰੋਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਦਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਵਿਕ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਫਰ ਫॉर ਸੇਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਈਟ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੋਡ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪਬਲਿਕ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਾਊ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ फीचर्स। नाउ सेकंड वन इज सेकेंडरी मार्केट। दो तरह की कैपिटल मार्केट होंगी है। न्यू इशू जो करवाया वो प्राइमरी मार्केट है। जो कंपनी ने जो ऑलरेडी शेयर्स इशू किए हुए जो लोग आपदे शेयर्स किसी थर्ड परसन किसी होर परसन ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ। यानी कि जो एग्जिस्टिंग जो शेयर्स ਹੈਗੇ ऑलरेडी जो कंपनी इशू कर चुकी हैगी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ। इट रेफर्स टू दैट मार्केट इन विच एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। एक ओहो जी मार्केट है जिथे जो ऑलरेडी इशू कीतियां हुई सिक्योरिटीज वो खरीदियां बेचियां जा रही ने। क्या फीचर्स ऑफ की है सैकंडरी मार्केट दे फीचर्स की नेगे। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੰਪਨੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰੂਗੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ। ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਸਟ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਾय ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਸੇਲ ਕਰੂਗੀ ਜਸਟ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਇਨਵੈਸਟਰ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟਰ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦੂਸਰੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ बेचूगा। तो ये इन्वेस्टर ही सिक्योरिटी खरीद रहा है इन्वेस्टर ही सिक्योरिटी बेच रहेगा। तो ये मार्केट की कर देगी थोनू लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दी है। जे मान लो कि हाँ बंदा जिहड़ा इन्वेस्टर जिन्हें फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज खरीदिया सी इहनूं पैसों की लोड़ पै जांदी हैगी तो ये की कर सकदा हैगा उन्हां शेयर्स नूं किसी होर इन्वेस्टर नूं सेल ऑफ करके लिक्विडिटी क्रिएट कर सकदा है। तो लिक्विडिटी क्रिएट करने वाली ऑप्शन आपां नूं सेकेंडरी मार्केट प्रोवाइड करदी है। इट कम्स आफ्टर प्राइमरी मार्केट वो तो पता ही हैगा। इट हैज पर्टिकुलर प्लेस। प्राइमरी मार्केट आप पढ़ेगा कि कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं होंगी जो ट्रांजैक्शन हो रही है कंपनी के इन्वेस्टर दे विच फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज नु इशू करन दी उन्होंने आपां प्राइमरी मार्केट कहेगा। सिमिलरली जेडी ट्रांजैक्शन इन्वेस्टर ते इन्वेस्टर दे विच हो रही है उन्होंने भी आपां की कहांगे सेकेंडरी मार्केट कहांगे। बट सेकेंडरी मार्केट दी एक पर्टिकुलर प्लेस भी होंदी है उस प्लेस नु क्या जांदा हैगा स्टॉक एक्सचेंज या फिर स्टॉक मार्केट भी तुसी कह सकते होंगे। यानी कि आ जिहड़ा एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर नूं शेयर बेचूगा वो केड़ी मार्केट च जाके बेचूगा स्टॉक एक्सचेंज। मतलब पर्टिकुलर एक जगह बनी हुई है जिथे इन्वेस्टर ते इन्वेस्टर्स आपस दे विच मीट करदे हैगे सिक्योरिटीज नूं बाय सेल करन लई। बट जरूरी नहीं हैगा कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही तुसी बेचना है। स्टॉक एक्सचेंज भी एक मार्केट जगह हैगी बट जो ट्रांजैक्शन इन्वेस्टर ते इन्वेस्टर विच हो रही है स्टॉक एक्सचेंज तो बाहर जो हो प्राइवेटली भी एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर नूं अपने शेयर्स बेच दिंदा हैगा ओनू भी आपां की नाम देवांगे सेकेंडरी मार्केट ही ट्रांजैक्शन कवांगे। इट इनकरेजेस न्यू इन्वेस्टमेंट। हुण सेकेंडरी मार्केट तुहानू इनकरेज कर दी है कि तुसी नवी इन्वेस्टमेंट करो। क्यों किवें इनकरेज कर देगी देखो एक यह तुहानू की प्रोवाइड कर रही है लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रही है। दो बेनिफिट होंगे एक तो देखो आप गल कीती है कि जे तुसी पैसा इन्वेस्ट करोगे तो पैसे नाल की होगी कैपिटल फॉर्मेशन होगी कि जे तुसी 50,000 रुपया लाया सीगा तो वापस तुहानू 55,000 मिलूगा कुछ ना कुछ तुहानू इदां रिटर्न मिलती रहूगी जिन्ना भी पैसा तुसी इन्वेस्ट करोगे। एक तो यह फायदा आपां नू कि पैसा ला के आपां नू तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न होगा। दूसरा फायदा की हैगा लिक्विडिटी। सेकेंडरी मार्केट तुहानू लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देगी कि इन केस अर्जेंट सिचुएशन दे विच आपां नू लोड़ पै जांदी है पैसे तो ये पैसे नू मैं 50,000 नू विड्रॉ कर सकती हूँ आपकी सिक्योरिटीज किसी होर पर्सन नू बेच के। तो आही रीजन हैगा कि ज्यादा तो ज्यादा इन्वेस्टर्स नू इनकरेज कर देगी सेकेंडरी मार्केट कि उन्होंने डर नहीं होंदा कि एक बार जे पैसा लादा तो 5 साल 10 साल उन्होंने पैसा फस जाऊगा लग्या ही रहूगा। वो कदों भी सेकेंडरी मार्केट दे विच आपकी सिक्योरिटीज नू बेच के पैसे नू कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इहदे नाल वध तों वध लोग इनकरेज होकर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सेकेंडरी मार्केट ते सेकेंडरी मार्केट दे फीचर्स। नाउ हुण कैपिटल मार्केट मनी मार्केट दे विच की डिफरेंस है ते उदों बाद आपां डिस्कस करांगे प्राइमरी मार्केट ते सेकेंडरी मार्केट दे विच की डिफरेंस है। सब तो पहला कैपिटल मार्केट ते मनी मार्केट देखो
कैपिटल मार्केट दे विच पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होंगे हैगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, कॉर्पोरेट बॉडीज, कंपनीज हो गया, फॉरेन इन्वेस्टर्स ते ऑर्डिनरी पब्लिक, ये सारे कैपिटल मार्केट दे विच पार्टिसिपेंट्स होंगे हैगे। मनी मार्केट दे विच आरबीआई बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, कंपनीज हो गया, ये सारे की हैगे मेन पार्टिसिपेंट्स हैगे मनी मार्केट दे। मीनिंग की हैगा, ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज दे विच डील करदी है, ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज दे विच डील करदी हैगी। इंस्ट्रूमेंट्स केड़े-केड़े यूज होंगे हैगे, कैपिटल मार्केट दे विच इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये सारे यूज होंगे हैगे। ते मनी मार्केट दे इंस्ट्रूमेंट्स जेडे आपां पंज पढ़े सीगे, कॉल मनी हो गया, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल्स हो गए, सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स, ये सारे मनी मार्केट दे इंस्ट्रूमेंट्स हैगे। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट आउटले, जो भी सिक्योरिटीज आप इन्हां मार्केट्स दे विच डील करदे उन्हां दा प्राइसिंग की हुंदी हैगी। तो देखो जिहड़ी कैपिटल मार्केट दे विच सिक्योरिटीज डील कीतियां जांदियां हैगियां उन्हां दा प्राइस जो हुंदा जनरली लो हुंदा हैगा। शेयर्स ते डिबेंचर्स दी वैल्यू नॉर्मली ₹10 10 इदां कुछ वैल्यू हुंदी हैगी। एक शेयर जे तुसीं खरीदना हैगा ओदी ₹10 वैल्यू होगी और डिपेंड करूगा कंपनी दी रेपुटेशन, कंपनी दी सिक्योरिटीज डिमांड वगैरह किन्नी है कि ओदे अकॉर्डिंग ओह वेरी करूगा। लेकिन जेहड़े आ इंस्ट्रूमेंट्स हुंदे हैगे मनी मार्केट दे, इन्हां दा टाइम पीरियड तो शॉर्ट हुंदा है, यानी कि विद इन दी 1 ईयर आप पैसे वापस करने हुंदे, लेकिन जो अमाउंट इन्हां सिक्योरिटीज तो आप इशू करदे ओ जनरली की हुंदी हैगी, हाई हुंदी हैगी। जिवें कि देखो ट्रेजरी बिल दे विच आप की पढ़िया सीगा, मल्टीपल्स ऑफ 25,000 की होगा ट्रेजरी बिल जेड़ा आप इशू करदे हो मल्टीपल ऑफ 25,000 दे विच इशू किया जाता हैगा। तो एक ट्रेजरी बिल जे तुसी इशू कर रहे हो तो ओदा मिनिमम अमाउंट कितना होगा, 25,000 होगा। लेकिन शेयर्स दा मिनिमम प्राइस कितना हो सकता है, ₹10 या जिवें भी वेरी होगा ओदे अकॉर्डिंग शेयर दी वैल्यू ₹10 भी हो सकती है। These instruments are of large amount. Example, minimum amount of car loans is 10 करोड़। कॉल लोन्स दे विच मिनिमम अमाउंट कितनी हैगी, 10 करोड़ दी। तो इदां इन्हां दे विच अमाउंट जो ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ रेंज ਉਹ ਲਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਈਅਰ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੇਰੀ ਕਰੂਗਾ। 1 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਕਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। सो ये सीगा कैपिटल मार्केट ते मनी मार्केट दे विच डिफरेंस। नाउ प्राइमरी ते सेकेंडरी मार्केट दे विच की डिफरेंस है। इशू सिक्योरिटीज आर इशूड फॉर फर्स्ट टाइम, उत्थे की हैगा कोई भी फ्रैश इशू नहीं होंदागा। जो ऑलरेडी सिक्योरिटीज इशू कीतियां हुई हैगी उन्हां दी ही बाइंग सैलिंग द्वारा तो हुंदी हैगी। बाइंग एंड सैलिंग जेडी हुंदी हैगी, इन्वेस्टर्स जेडे हैगे ओह कल्ली बाय कर सकदे सिक्योरिटीज, इन्वेस्टर्स बाय ते सेल दोनों ही कर सकदे सेकेंडरी मार्केट दे विच। स्पेसिफाइड प्लेस नहीं हुंदी कि प्राइमरी मार्केट दी ते, बट जेडी सेकेंडरी मार्केट है ओदी एक स्पेसिफाइड प्लेस हैगी स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज दे विच इन्वेस्टर्स मीट करके आपस दे विच सिक्योरिटीज एक्सचेंज कर सकदे हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन जो होएगी प्राइमरी मार्केट दे केस दे विच प्राइस डिटर्मिनेशन हमेशा कंपनी करती हैगी, लेकिन सेकेंडरी मार्केट दे विच प्राइस डिटर्मिनेशन जो है वो डिमांड एंड सप्लाई दियां फोर्सेस करती हैगी। यानी कि डिमांड ते सप्लाई नू देख के सेकेंडरी मार्केट दे विच प्राइसेस तय कीते जांदे हैं। पार्टीज किहड़ियां-किहड़ियां हुंदियां, कंपनी ते इन्वेस्टर। इत्थे तुसी कंपनी एंड इन्वेस्टर इत्थे लिखोगे। इशूइंग कंपनी एंड इन्वेस्टर्स are the parties, only investors do the trading among themselves। उत्थे गल्ले इन्वेस्टर्स ही हुंदी है पार्टीज, इत्थे कंपनी ते इन्वेस्टर दोनों बोथ के हुंदे हैगे पार्टीज हुंदी। सो ये सीगा डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। होपफुली थोनू इन्ना टॉपिक समझ आया होगा। कैपिटल मार्केट की हुंदी है, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट की हुंदी, कैपिटल ते मनी मार्केट दे विच की डिफरेंस है क्लियर होया होगा। हुण इहदे नाल ही अपनी जो 10.1 यूनिट है वो कंप्लीट हुंदी हैगी। इस चैप्टर दे विच हुण अपनी सिर्फ 10.2 यूनिट रहेगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है इस यूनिट दे विचों तो वो पढ़ लियो ते क्वेरीज अपनियां पूछ लियो। आपां सारियां क्वेरीज डिस्कस करांगे ते हुण मिलांगे आपां नेक्स्ट लेक्चर दे विच। उदों तक कोई भी डाउट होया वो पूछ लियो। हैव अ गुड डे।